वेलकम टू साउथ सिटी PCMB ऑडियो वीडियो चैनल। आई एम योर मैथ्स मेंटर मितेश चौरसिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 8th, रेशनल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। What are rational numbers? A rational number is any number that can be represented as P by Q, where Q and P and Q are integers and Q is not equal to 0. The condition is Q is not equal to 0. Why we can't take Q is not equal to 0? Q 0 क्यों नहीं ले सकते हम लोग? Because we cannot divide any number by 0, because we cannot divide any number by 0. 0 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है? नॉट डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी। इफ योर q is equal to 0, let's take an example 3/0. सो 0 से हम डिवाइड करने पर हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। दैट इज वाई वी कैन नॉट टेक 0. So few examples are there: 1/2, -3/4, 5 comma 0. It is not 5/0, 5 comma 0. Types of rational numbers: positive rational numbers, negative rational numbers, and there is another number is 0. 0 is neither positive nor नेगेटिव। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इट इज न्यूट्रल। सो ऑल द पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नेगेटिव रेशनल नंबर मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ नेगेटिव साइन, लाइक -1, -2, -2, -3 and together with 0. So 0 is also a rational number because we can write 0 as 0/1. हम लोग 0 को राइट कर सकते हैं ना 0/1. As you can see, it is represented as P by Q and Q is not equal to 0. Our basic condition that Q is not equal to 0. Q 0 भी नहीं है, न्यूमरेटर इज आर 0. ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन हम लोग कैसे? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इंटीजर्स टू बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन. हियर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. So here is -1. So -1 is it here, so we can represent it as A. Second one is -1/2. -1/2 ये कहाँ पे आएगा आपका? -1/2 ये 0 एंड -1 के बीच में आएगा. तो ये आपकी वैल्यू यहां पर आ गई -1/2. 1/2 कहां पे आएगा आपका? 1/2 0 एंड 1 के बीच में. हेयर 1/2. द नेक्स्ट नंबर इज 1. सो द 1 इज ऑलरेडी देयर. So this is how we can represent rational numbers on number line. Properties of rational numbers. The first property is closure property. It states the closure property of addition for rational numbers means that the sum of any two rational number is always another rational number. This property holds true for all pairs of rational numbers. कोई भी हम लोग rational number ले सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 1/2 अनदर +3/4. These two are rational numbers, P by Q. Let's add them.
So LCM of 2 and 4 is 4. So 2 plus 3 is equal to 5 by 4. So ये भी आपका एक रेशनल नंबर है. So क्लोजर प्रॉपर्टी यही है कि whenever we add 2 or more than 2 rational numbers, we get a rational number. Our next property is commutative property. It states that changing the order of the numbers being added does not change the sum. Means हम किसी भी 2 numbers को, कोई भी हम 2 numbers ले लें रेशनल नंबर्स, उनका कोई भी ऑर्डर लें, वो कभी भी चेंज नहीं होता है. रिजल्ट आपका चेंज नहीं होगा. देयर इज एग्जांपल a plus b is equals to b plus 1. So let's take an example. 1 plus 2 plus 2 by 5 is equal to 2 by 5 plus 1 by 2. मीन्स ये ऑर्डर चेंज करके देख लिया हम लोगों ने. अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा ये प्रॉपर्टी फॉलो अप हो रही है कि नहीं हो रही है. तो देखते हैं. एलसीएम ऑफ 2 and 5 इज 10. सो 2 5s are 10. 2 5s are 10. So 5 1s are 5 plus 5 2s are 10. Therefore 2 2s are 4 gives 9 by 10. Here we can see the LCM of 5 and 2 is 10. Again 5 2s are 10, so 2 2s are 4 plus 2 5s are 10, so 5 1s are 5. The resultant is 9 by 10. जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा LHS and RHS both are same. So it means commutative property follows under the addition for rational numbers. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये भी सेम वैसे ही है जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, सेम वही है एसोसिएटिव, बट इट इज फॉर मोर देन 2 रेशनल नंबर्स. ये दो रेशनल नंबर से ज़्यादा के लिए होती है. इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं. 1 by 2 plus 1 by 3 plus 2 by 5. एसोसिएशन है, मीन्स यहाँ पर हम किसी भी 2 नंबर्स को ग्रुप कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में. हमने यहाँ पे 1 by 2 एंड 1 by 3 को ग्रुप कर लिया है. वन बाई 3 प्लस 2 by 5. अब इस केस में हमने इन दोनों नंबर्स को ग्रुप कर लिया है. देखते हैं हमारा रिजल्ट आता है कि नहीं. सो 1 by 2, LCM of 2 and 3 is 6. So 2 3s are 6, so 3 1s are 3 and 3 2s are 6, 2 1s are 2 plus 2 by 5. So again the LCM of 6 and 5 is 3 by 2, 5 by 6 plus 2 by 5. So LCM of 6 and 5 is 30. Therefore 6 5s are 30, 5 5s are 25 and 5 6s are 30, 6 2s are 12 gives 37 upon 30. इधर चेक करते हैं हम लोग RHS को. 1 by 2 plus LCM of 3 and 5 is 15. So 3 5s are 15, 5 1s are 5 plus 5 3s are 15, so 5 2s are 5 3s are 15, 3 2s are 6 gives 1 by 2 plus 6 5 11 by 15 and LCM of 2 by 15 is 30. Now 2 15s are 30 and 15 2s are 30, so 22. इसको ऐड करेंगे तो ये भी आपका आया 37 by 30. सो आप देख सकते हैं कि हमारा LHS और RHS दोनों ही सेम है. इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी रेशनल नंबर में फॉलो अप होती है ओनली फॉर एडिशन.
नेक्स्ट ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, क्या क्या हम ऑपरेशन, देयर आर 4 ऑपरेटर्स बेसिकली, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमारे पास यही 4 ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये सभी ऑपरेशंस हम लोग 1 बाय 1 कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज देख ली हैं एडिशंस की, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन की भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की, एंड देन आफ्टर डिवीजन। नेक्स्ट थिंग इज कंपेयरिंग रेशनल नंबर्स। कैसे हम 2 रेशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, लाइक देयर इज अ रेशनल नंबर 1/2, 3/4 हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स बट सेम डिनोमिनेटर्स ले लेते हैं, लाइक 9/7, 11/7। ये 2 नंबर्स हमने लिए हुए हैं, यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर है, तो बेसिकली जैसे हम नॉर्मली नंबर कंपेयर करते हैं सेम वे पे कंपेयर कर सकते हैं। विच वन इज ग्रेटर, 9 और 11? वी ऑल नो दैट 11 इज ग्रेटर, therefore we can compare 11/7 is greater than 9/7। बट जब डिफरेंट आपके डिनोमिनेटर्स आ गए हैं उस केस में क्या करेंगे, देयर आर 2 ways। फर्स्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, like 4 1s are 4 and 2 3s are 6। here we can see 6 is greater than 4, 6 is greater than 4, therefore 1/2 is less than 3/4, or we can say 3/4 is greater than 1/2। and another method is to make denominator same, LCM method। 2 और 4 का हम लोग LCM लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। so 1/2 LCM of 4 and 2 is 4, so यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, so 2 1s are 2 and 2 2s are 4, और उधर बन गया आपका ऑलरेडी था डिनोमिनेटर 3/4। सेम डिनोमिनेटर्स हैं, पहले जैसे डिस्कस किया हुआ हमने कि सेम डिनोमिनेटर्स हैं, तो सिर्फ आपको न्यूमरेटर्स को देखना है। न्यूमरेटर विच वन, 2 और 3, सो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/4। Here are few questions। Is -3/7 a rational number? क्या -3/7 रेशनल नंबर है? कैसे पता चलेगा? लेट्स रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। सो द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन be represented as p/q and having the denominator not equal to 0, means q is not equal to 0. Look, -3/7 on comparing it by p/q, p is equal to -3 and q is equal to 7। जो हमारी कंडीशन थी सेकंड, q is not equal to 0, q 0 के इक्वल में नहीं है और नंबर भी p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, therefore -3/7 is a रेशनल नंबर। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका yes, it is a रेशनल नंबर as we can represent as -3/7 is in the form of p/q। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5। एडिटिव इनवर्स क्या है आपका, वो नंबर जिसको ऐड करने पर 0 आ जाए। इन अदर सिंपल वर्ड्स, द सेम नंबर हैविंग डिफरेंट साइन, मीन्स वही नंबर बस साइन उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं, 2/5 है, यही नंबर रहेगा बस साइन ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया मैंने इसमें, तो ये आपका हो गया एडिटिव इनवर्स। किसी भी एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक -3/5। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5? द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 3/5। यहाँ पर बच्चे एक बहुत ज़्यादा मिस्टेक क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5, तो बच्चे ऐसे कुछ लिख देते हैं, 2/5 इज इक्वल टू -2/5। ये रॉन्ग हो गया, बिकॉज the left side fraction is, or the rational number is positive there and right side rational number is negative, so how can these two rational numbers are equal? कैसे हो सकते इक्वल, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को हमेशा implies that का साइन यूज करना होता है, डायरेक्ट आप इक्वल साइन नहीं यूज कर सकते, implies that साइन यूज करेंगे। 2/5 implies that, और जस्ट थ्योरेटिकल पूरा आंसर भी दे सकते हैं, लाइक द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज -2/5। इक्वल साइन लेकिन बस यूज नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर है? देखते हैं इसे भी।
इज जीरो आर रेशनल नंबर। हमने इनिशियली आपको ये डिस्कस किया था क्वेश्चन कि जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0/1, उसकी कोई भी वैल्यू में चेंजमेंट नहीं आएगा 0/1। जब भी हम किसी जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो प्रॉपर आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं की गई है। और अब आप देख सकते हैं कि ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q आपका 0 भी नहीं है। आपका p 0 है, न्यूमरेटर 0 है, बट q डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं है। देयरफॉर इज 0 अ रेशनल नंबर? यस इट इज। Next thing, write 3/4 in decimal form. Decimals are also rational numbers. Decimals भी rational number होते हैं। 3/4 इसको divide करते हैं। So 4 it cannot be divided. So let's take decimal. So it will become 30. 4 7 जा 28. 4 7 जा 28. आपका कितना बच गया? 2. 4 5 जा 20. So 3/4 can be represented as 0.75 in decimal form. जी हमारे सारे आंसर्स कवर हो चुके हैं। समरी आज के लिए कितना रहेगा? रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म p/q, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मीन्स रेशनल नंबर्स कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो। जीरो कैसा होता है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मीन्स न्यूट्रल। ओके। एडिशन, सिर्फ एडिशन के भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी हुई हैं। तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, एडिशन से रिलेटेड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, 3/4 प्लस 7/5 इज इक्वल टू 7/5 प्लस 3/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना होगा कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। सो इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मीन जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हम लोग किसी भी ऑर्डर में a प्लस बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज और रिटन एज b प्लस a। मीन्स हम ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम किसी भी ऑर्डर में इनको राइट कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सो LHS सॉल्व करते हैं। 4 5 जा 20। एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है? जब भी कोई भी को प्राइम नंबर्स हो तो आप डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। नाउ 4 5 जा 20, सो 5 3 जा 15 प्लस 5 4 जा 20, 7 4 जा 28। ऐड कर दीजिए। 8 and 5 13, कैरी ओवर 1, 2 1 3 1 4, सो इट इज 43/20। अब RHS को हम लोग देखते हैं। 5 4, LCM of 5 4 is 20. Now 5 4s are 28, 7 4s are 28. Again 4 5s are 20, 5 3s are 15. इनको भी ऐड करके देखते हैं। 8 and 5 13, कैरी ओवर 1 1 1 2 2 4, 43/20। सो हमारा LCM RHS एंड LHS दोनों का सेम आया है हमारा सॉल्यूशन। सो देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे तो रेशनल नंबर में आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, बट ये सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। चलिए एक एग्जांपल हम लोग सब्ट्रैक्शन का भी लेके देख लेते हैं। 1/3 माइनस 4/5, 4/5 माइनस 1/3। अब लोग देखते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती है या नहीं होती है। सो LCM ऑफ 3 and 5 इज 15। नाउ 3 5s are 15, 5 1s are 5, and 5 3s are 15, 4 3s are 12। 5 minus 12 minus 7/15। 12 माइनस 5 से 12 तो माइनस होगा नहीं, तो हम लोगों ने 12 से 5 को माइनस किया, कितना आया 7, और साइन किसका लेते हैं? ग्रेटर वैल्यू का। सो 12 इज ग्रेटर, देयरफॉर माइनस साइन। इसको सॉल्व करते हैं। 5 3s are 15, 5 3s are 15 and 4 3s are 12, माइनस 3 5s are 15, 5 1s are
5. तो 12 minus 5 is 7/15. तो आप देख पा रहे हैं कि LHS हमारा क्या आया -7/15, RHS कितना आया +7/15. सो दे आर नॉट इक्वल. इट मीन्स जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वो रेशनल नंबर्स में फॉलो नहीं होगी. किसी और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग. टू बाई 5 प्लस 6/7 माइनस 1/3. टू बाई 5 प्लस 6/7 माइनस 1/3. इस एग्जाम्पल से देख करके 3 नंबर्स हैं. इट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती है. ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. अब हमें देखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग एडिशन में तो देख चुके हैं कि सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है. चलिए देखते हैं. 5 7 जा 35. LCM इज 35. नाउ 5 7 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 7 5 जा 35, 6 5 जा 30 माइनस 1/. इस एग्जाम्पल्स को देख रहे थे हम लोग. चलिए देखते हैं. सो 14 एंड 34 कितना हो जाएगा आपका 404 एंड 3 1 4. 44/35 माइनस 1/3. नाउ द LCM ऑफ 35 and 3 is 105. 35 3s are 105. So 44 into 3. Now moving to RHS. So 2 by 5 plus LCM of 7 and 3 is 21. 7 or and LCM of 7 and 3 is 21. So 7 3s are 21, 3 6 ja 18 minus 3 7 ja 21, 7 1 ja 7. So again 2 by 5 plus 18 minus 7 11. 11 by 21. Now we will take the LCM of 5 and 21. So LCM of 5 and 21 is 105. So when we divide 105 by 5, we will get 21 as quotient. So LCM of 5 and 21 is 105. So 5 से जब डिवाइड करेंगे 105 को तो आपका आ जाएगा 21 into 2 plus 21. 105 divided by 21 gives 5. So 11 into 5. So 21 2s are 42 plus 11 5s are 55 upon 105. ऐड करते हैं इन्हें. So 5 2 7. Now 5 4 9 upon 105. As we can see LHS is equals to RHS. इसका मतलब क्या हुआ हमारा LHS RHS इक्वल है. इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये भी आपकी एडिशन में फॉलो होती है. ये एडिशन में फॉलो होगी. आपको माइनस साइन जरूर दिख रहा है पर ये प्रॉपर्टी एसोसिएशन की ही होगी और एडिशन की होगी. ओके लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. क्लोजर प्रॉपर्टी का मैंने भी डिस्कस किया था तो देखते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी. चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स. क्लोजर प्रॉपर्टी व्हेनेवर वी ऐड 2 और मोर देन 2 रेशनल नंबर्स वी गेट अ रेशनल नंबर. देखते हैं रेशनल नंबर. -1/2 -1/2 is a rational number as it is represented as P by Q and Q is not equal to 0. Our next number is 13/4.
ले लिया हमने ये दो रेशनल नंबर्स, इनको ऐड करते हैं। सो 4 LCM ऑफ 4 and 2 इज 4। Now 2 2s are 4 and 2 into -1 plus प्लस 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 and 1 into 13, so 2 into -1 -2 plus 13 1 जा 13 upon 4, so plus minus 13 minus 2 11 by 4। साइन किसका लेंगे? ग्रेटर वैल्यू का। 13 और 2 में ग्रेटर कौन है? 13, सो साइन पॉजिटिव ही रहेगा आपका। And we can see 11 by 4 is also a rational number as it is fulfilling the property of a rational number, that is P by Q, and Q is not equal to 0. Here we can compare by P by Q। हम लोग P by Q से कंपेयर करते हैं तो P की वैल्यू 4 हो जाएगी, Q की वैल्यू P की वैल्यू 11, Q की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी और Q नहीं है 0। इट मीन्स ये हमारा क्या फॉलोअप कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये फॉलोअप कर रही है। तो ऐसे हम अलग अलग क्वेश्चंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की सभी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। टू बाई 5 प्लस 3 by 7 is equal to -3 by 7 ले लेते हैं। -3 by 7 प्लस 2 by 5। एक और एग्जांपल है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। आज हम लोग ने सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, कॉम्यूटेटिव, क्लोजर और एसोसिएटिव, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल, सॉल्यूशन करते हैं इसको। 2 by 5 प्लस माइनस 3 by 7। सो LCM ऑफ 5 and 7 is 35। 5 7 जा 35, 7 2 जा 14 माइनस 7 5 जा 35, 5 3 जा 15। सो 15 माइनस 14 माइनस 15 क्या करेंगे? 14 से तो 15 माइनस नहीं हो सकता, तो 15 माइनस 14 इज 1 बाई 35। और साइन ग्रेटर वैल्यू का लेंगे, 15 ग्रेटर है, इसका साइन माइनस है, तो ये -1 बाई 35। LHS में आते हैं, सॉरी LHS और RHS में 7 5 जा 35। नाउ 7 5 जा 35 एंड 5 3 जा 15, -15 प्लस 5 7 जा 35, तो 7 2 जा 14। अगेन प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, सो 15 में 14 माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? -1 अपॉन 35। आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम लोगों ने बच्चों आज क्या पढ़ लिया है? आज हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ एडिशन का पार्ट अभी देखा है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का पार्ट अभी बाकी है। 4 ऑपरेटर्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को देखा हुआ है। क्या ये सारी प्रॉपर्टीज़ सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती हैं? क्या ये सारी प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होंगी या डिवीज़न में फॉलो होंगी? ये सब हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। सो इसकी तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी डाउट्स हों, जो भी आपके डाउट्स हों, वो आप नेक्स्ट टॉपिक पे आप अपने डाउट्स हमें बता सकते हैं, तो हम लोग उसे नेक्स्ट टॉपिक पे अपने कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल साउथ सिटी PCMB ऑडियो विजुअल चैनल, एंड आप इसको लाइक करें। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर मितेश चौरसिया। थैंक यू।